I think that genuinely this is the way forward हमारे मुल्क के लिए, and ताकि आप लोगों को एक बेहतर आइडिया आए, हमारे जो लोग इकोनॉमिक्स की दुनिया में और फाइनेंस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली फरीद ख्वाजा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे. नो डाउट योर रेपुटेशन precedes you. Not only are you a well known name स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऑल्सो फिनटेक और टेक्नोलॉजी स्पेस में. ये शो एसेंशली we're trying to bridge the gap एक आम आवाम के साथ एंड वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस के बीच में, और हमारा एम है कि हम एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को और अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं अबाउट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट के फॉर्म्स क्या हैं. तो मैं आपसे एसेंशली पहली चीज़ पूछना चाहूँगी, कल एनालिस्ट ब्रीफिंग आई है ऑफ FFC and they had a few really great points. उनका market share बढ़ गया है, their deal with Mari Petroleum for the gas prices till 2029, AGL के साथ वो try कर रहे हैं कि वो production increase करें. So do you have anything to say about this? I'm a big fan of all the financial literacy and education stuff which you are doing. पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आपने बोला कि if people of Pakistan do well financially, then that helps Pakistan. हम काफ़ी दफ़ा डिबेट करते रहते हैं पाकिस्तान में कि how can we improve Pakistan's economy, और मगर हम भूल जाते हैं कि Pakistan's economy is nothing but the financial well-being of the people of Pakistan. So if we take micro steps and focus on the financial well-being of people of Pakistan, that's the route for sustainable economic development of Pakistan as well. So hats off to you for all the initiatives which you are doing and for this show. Coming to the question, FFC का result और FFC के बारे में, so it's a great company and it's one of those companies. The reason why I really like it is that it's an expansion mode. पाकिस्तान में जैसा आपको पता है कि पिछले 5-6 सालों से क्योंकि इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी रही है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो है वो ग्रोथ मोड पे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, जो भी एक अच्छी बात है, मगर वो खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती. वो कहती है कि हमारे प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो हम अपने शेयर होल्डर्स को वापस दे देते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स पाकिस्तान में हो या शेयर होल्डर्स मुल्क से बाहर हो. Magar Fauji Group in general and for FFC in particular has been investing in various growth areas and for expansion, whether it's expansion in fertilizer, whether it's going into new areas. So that's the key thing, the main reason why I have a preference for this, because this is one company which is investing in growth of Pakistan. The second key thing is that agriculture is the backbone of our economy, और agriculture में ही सबसे ज़्यादा potential है for massive growth. जिस तरह आपको पता होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट corporate farming initiatives पे पहली दफ़ा जो है वो फोकस कर रही है. Large pieces of lands which were previously जिसमें कभी कुछ grow नहीं हुआ था, उस पे अब agriculture growth होगी. So all of that bodes very well for fertilizer sector in general, but FFC in particular because it's the leader in Pakistani fertilizer industry. थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो हम एसेंशली आपको जो हमारे करंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो मुझे तो लगता है कि दे पॉजिटिव, लाइक द करंट अकाउंट डेफिसिट, द रिजर्व्स, IMF का प्रोग्राम, और ये जितने भी हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, आपको लगता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव? Certainly positive, because we're comparing it with the past, right? Like just 18 months ago, we were about to default. 18 months ago, everybody thought that Pakistan will end up like Sri Lanka or like Lebanon. We wouldn't have money to pay back IMF. Our inflation was 30%. Interest rates were equally high. So over the improvement over the last 18 months in achieving stability जो है वो तो बड़ी visible है. जैसा आपने कहा कि वो reserves का number हो, वो inflation का number हो, वो interest rate का number हो, वो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर हो, वो रेमिटेंसेस का नंबर हो, हर नंबर में इम्प्रूवमेंट जो है वो तो इट हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड इट्स क्वाइट सॉलिड. हैविंग सेड दैट, आवर इकोनॉमी हैजंट रियली स्टार्टेड ग्रोइंग दैट मच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी जब तक ग्रो नहीं करेगी, जब तक हम एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ की तरफ ना जाए, और एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ को अचीव करने में टाइम लगेगा, और उसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्रोथ की तरफ इन्वेस्ट करें. And that leads to the point which we raised earlier, that FFC and Fauji Group is investing in growth, and that's why I like it. Yes, most definitely. I'm really glad that you shared all of this. So essentially,
हमारे जो गवर्नमेंट है वो कौन सी नई पॉलिसीज़ और स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर सकती है जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इन्वेस्टर बहुत पेसिमिस्टिक है और अगर पाकिस्तानी सिटीजन कॉन्फिडेंट नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात हो, लेकिन वी आर सीइंग अ ह्यूज फ्लाइट ऑफ कैपिटल। हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प दिस? बिकॉज आप देखें तो एस्टिमेट ये है कि हर साल $16 बिलियन आपकी क्रिप्टो मार्केट में इलीगली फ्लो हो जाते हैं। हाउ कैन वी ब्रिंग दैट टुवर्ड आवर ओन मार्केट्स? A great point, and we can do a whole show on this because it's so important a question. I'll just make 3 quick points. एक तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है उसके लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करें उसको ऑनर करें। आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा MOUs की अनाउंसमेंट हुई है, कभी सऊदी के साथ, कभी चाइना के साथ, अभी हाल ही में अमेरिका के साथ। सो ज़रूरी है कि जो MOUs है ये इम्प्लीमेंटेशन फेज पर जाए ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि दीज आर नॉट जस्ट प्रेस रिलीजेज एंड दीज आर नॉट जस्ट गुड स्टोरीज बट दीज कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जिस पे काम हो रहा है। सो आई थिंक जिसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ भी बॉटल नेक हो किसी भी प्रोजेक्ट का उसको सॉल्व किया जाए। सेकेंड थिंग, परसेप्शन मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। जिस तरह आप शो कर रही है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को देने के लिए, थिंग्स इनिशिएटिव्स लाइक दैट आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ज़्यादातर लोगों के पास सही खबरें नहीं होती और वो सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर कोई लिख दें उसको बिलीव करता है। सो फ्रॉम अ गवर्नमेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन परस्पेक्टिव, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव द फैक्ट्स whether they are positive or negative. We should give honest and true facts to people so that and that generally helps in perception management. Third thing in particular, आपने क्रिप्टो की बात की, बिल्कुल आप सही कह रही है कि पाकिस्तान से मैसिव कैपिटल फ्लाइट होती है और उसको रोकना which is against the law, और उसको रोकना is a responsibility of institutions such as FIA and State Bank. अगर उसमें वार्निंग है तो स्टेट बैंक शुड इम्पोज द रेगुलेशन। आई एम इन द बिलीव दैट स्टेट बैंक शुड रेगुलेट द सेक्टर, गिव लाइसेंसेज, अलाउ इंटरनेशनल कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इंटरनेशनल कंपनीज भी पाकिस्तान में एक्सपैंड करेगी और ये जो कैपिटल फ्लाइट का जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व होगा। तो आई हैव एसेंशियली हर्ड सम रूमर्स, राइट? ये सब स्पेकुलेशन है कि स्टेट बैंक इज ट्राइंग टू रेगुलेट और क्रिएट अ फ्रेमवर्क अराउंड द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो। कैन वी एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई किस्म की रेगुलेशन आएगी ताकि हम इसे एटलीस्ट वी कैन मेक श्योर पीपल आरंट एंटरिंग सच अ डेंजरस स्पेस एंड दैट टू इलीगली? Absolutely. As in more than rumor, I think it's the requirement of the time. It's high time that government of Pakistan and SECP, State Bank, Ministry of Finance, all the institutions जो इसमें involved हैं वो उस पर regulation लेकर आए, क्योंकि अब दुनिया तब्दील हो गई है। US जो कि लीडर है financial markets का, उस पर President Trump is talking about building a strategic reserve for crypto. He's talking about making US the leader in digital assets. तो US जब करेगा तो दुनिया के हर मुल्क US को फॉलो करेगा। तो इट्स टाइम राइट नाउ फॉर पाकिस्तान टू डू इट। और जैसा आपने बोला कि पाकिस्तान के लिए तो और भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 20 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त क्रिप्टो प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनके पास कोई रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड की समझ नहीं है और इस पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही क्योंकि none of these companies like the global giants like Binance or Coinbase or OKX need to be in Pakistan. उन सब ने दुबई में ऑफिसेस खुले हुए हैं और पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। So we are net losers. So high time for our institutions to wake up.